everyone. Welcome to the first webinar of our Inclusive Evaluation Redefined series being hosted as part of the Global Evaluation Week 2025. And I see a lot of you joining, so I'll wait for a few more seconds. We had an overwhelming response and registrations, and we are looking forward to this session that it's also a insightful session for all of you. It would be interesting if you could all tell us where you are joining from, which organization, which part of the country, so that we just get a sense of how, what from where everyone has joined in. All right. Before I begin, I'd like to mention that I'll be sharing a PPT and the session is in English and Hindi, where I'll be communicating in between Hindi and English, while my colleagues and our speakers today will be communicating in Hindi. And the PPT that we'll be sharing is in English. Okay, welcome everyone. Just need a heads up from my speakers with me today that they can see my PPT. Is everyone can see my PPT, right? Yes. Great. Okay. Okay. We are still seeing a lot of people joining in. And all right, I see someone joining from Chennai, someone from Uttar Pradesh. All right, very interesting. Okay, let's begin. Before actually moving, I would like to firstly introduce the speakers we have. Then I'll move on explaining what this evaluation week has been and what we do at Fourth Wheel. And then I'll hand it over to my colleagues. Okay, so allow me to introduce our speakers. Our first speaker here is Jay. He's research manager at Fourth Wheel Social Impact. Jay holds a master's degree in social work and diploma in labor laws practice from Mahatma Gandhi Labor Institute, Ahmedabad. Since April 2019, he has been working at Fourth Wheel Social Impact as a research manager. In this role, he focuses on assessing the social impact of research studies, managing data, and conduct analysis. He has experience with statistical tools and CAPI instruments like Survey CTO, and a strong background in participatory data collection methods. Moving on, we have Vaishali Chauhan with us. She's also the oldest Fourth Wheel, one of the oldest Fourth Wheel member. I want to add that. She's been working with Fourth Wheel Social Impact since 2014, and currently she manages all field operations as a senior manager at Fourth Wheel Social Impact. Her journey in this space started as a field worker, where she was responsible for data collection, team leading, data cleaning, and data monitoring. Uh, Over the years, and especially in current role as a senior manager, her responsibilities include providing tool trainings to the team, developing survey tools on CTO, translating tools, and largely managing field operations. Over the past 10 years, Vaishali has been able to uh, work extensively in the field using a variety of tools and methodologies. So welcome, Vaishali. Thirdly, last but not the least, amongst all of us, I'd like to welcome Urgesh. Urgesh is currently the manager, data analyst at Fourth Wheel, and he also holds a master's degree in social work from Mahatma Gandhi Labour Institute, Ahmedabad. Uh, since September 2019, he has been associated with Fourth Wheel, and in his current role, Urgesh has gained extensive experience in supervising field teams, conducting surveys, managing and collecting data, analyzing data, and he has one interestingly various skill of using various data visualization tools to derive meaningful insights for social impact assessment. So it's a pleasure to have all of you and sharing this space with all three of you. Um, Moving on, all right. Hope everyone can see my PPT. Right. Just a second. Yes. So briefly moving on, just wanted to add what Global Evaluation Week it has been.
It's a global knowledge sharing event. It happens every year and it connects all evaluators, development practitioners, and chain makers to share insights and foster learning. The 2025 edition, which has been taking place from June 2nd, goes on till June 6th. And it centers on the theme evaluation for a better future, environmental sustainability, inclusion, and peace. Mhm. Before I hand over to my colleagues, I want to briefly also talk about Fourth Wheel Social Impact. It was established in 2010. And one of the three core work we do is strengthening social development initiatives through impact strategy, management, and measurement. We help organizations achieve meaningful and sustainable outcomes by using data-driven insights and participatory methods. And our services include impact strategy, program design, impact evaluation and management, building M&E systems, and capacity building. To just name the few uh, key stakeholders and partners we have worked across India in this social impact space is World Bank, E.T. Chandra Foundation, Reliance Foundation, HDFC Bank, Akanksha Foundation, Quest Alliance, and many more, which I couldn't add here. But for more details, please, you can see our website here, fourthwheel.com. And please do say hello to us at hello@thefourthwheel.com. All right. Um, so just setting up the bit of an agenda and letting all the speakers speak and me going away from this screen. So our focus today is participatory M&E tools for sustainable and inclusive development. And the webinar here will, since it's the first one of all the series that we are holding today, tomorrow, and day after tomorrow, this one is focused on specifically on participatory M&E tools. And we are hoping that through this, the one of the key takes away for you also are what are the different kinds of participatory tools that can be used in conducting various studies, and how do these participatory tools, such as prioritization, ranking exercises, resource mapping, reveal different views on the impact of intervention, and what have been the key learnings, outcomes, and challenges while working with these tools as a team that we are here. Uh, so without much further ado, I'd like to invite my colleague Jay, where he's going to talk about value game. Uh, Welcome, Jay. Uh, Thank you, Juhi, for a wonderful introduction. And hello, everyone. So, I will be talking about value game today. So, first of all, let us understand what is value game. So, basically, value game is a interactive participatory data collection method in which we learn and understand about the program benefits and outcomes from the beneficiary through game based activity based method. So basically, in social return on investment method, we have used this value game uh, data collection method, so in which the it helps in assigning financial proxy to all the outcomes. So this is the value game. And in back in 2023, Fourth Wheel has partnered with HDFC Bank, and along with the implementation partner Ambuja Cement Foundation and Oran EduTech. So in different locations pan India, we have incorporated this value game method in Uttarakhand and in Odisha. In Uttarakhand, we have conducted the study in Haridwar, Roorkee, Dehradun, and in Odisha we did in Bhubaneswar. So basically in this study, स्टडी का मेन फोकस ये था कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, सो बेसिकली अनएम्प्लॉयड यूथ को एच डी एफ सी बैंक विद द हेल्प ऑफ अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन उनको ट्रेनिंग दे के उनको प्लेसमेंट प्रोवाइड करते थे. एंड a vocational training includes various trades such as assistant electrician, general duty assistant, customer care executive, data entry operator, so and so. तो ये हमारा यूथ का मतलब हमने स्टूडेंट्स के साथ ये वैल्यू गेम को मैंने हमने कंडक्ट किया था. तो ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैल्यू गेम इज वेरी मच हेल्पफुल व्हेन देयर इज अ सर्वे फटीग अमॉन्ग द रिस्पोंडेंट्स.
राइट। सो जैसे कि आप जानते हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, जिन लोगों ने स्टडी में पार्टिसिपेट किया होता है, तो काफ़ी सारे सर्वेज में उनके साथ किए जाते हैं, काफ़ी सारे इंटरव्यूज होते हैं, तो बेसिकली एक सर्वे फटीग डेवलप हो जाता है। तो वैल्यू गेम हेल्प्स specifically when there is a survey fatigue among the respondents. So basically it creates a friendly and informal atmosphere between participants and researchers, where participants feel very much comfortable and they freely express themselves. तो ये हमारे स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। एंड दूसरा ये था कि इन वैल्यू गेम वी कैन कंपेयर the tangible items with the intangible benefits of the program. So suppose tangible items per se, in value game in SROI study, टेंजिबल आइटम्स में जैसे कि मटेरियल चीज़ें होती है, जैसे कि गिफ्ट्स है, मोबाइल फ़ोन वगैरह। तो इंटेंजिबल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम सच एस कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल्स है, फिर प्लेसमेंट मिलना, तो उनके साथ कंपेयर करना होता है। तो पार्टिसिपेंट्स कैन रिफ्लेक्ट देयर प्रायोरिटीज एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। So with the help of that, we get very fruitful insights which we may not get through direct questioning, right? And in SRY method, value game is very much helpful, specifically when जहाँ पे हमें आउटकम्स को मोनेटाइज करना होता है। सो इन SRI it is difficult to assign a value to outcomes and outcomes are very hard to quantify. तो जैसे कि ये टेंजिबल आइटम्स को इंटेंजिबल बेनिफिट से कंपेयर करते हैं, तो उसको हम बेसिकली मोनेटाइज करते हैं, जिससे हमारे SRI कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड वैल्यू गेम इज इम्पोर्टेंट इन अ वे दैट पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं उनको एग्जैक्टली पता चलता है कि पार्टिसिपेंट्स क्या वैल्यू करते हैं, मतलब किन चीज़ों की वैल्यू उनके लिए सबसे ज़्यादा है। तो वो उनकी जो इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी है या प्रोग्राम जो उनका प्रोजेक्ट है उसको रिडिज़ाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिकली टू मीट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बेनिफिशियरीज। सो ये तो वैल्यू गेम का इंपॉर्टेंस था। अभी आई विल टेक यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ द वैल्यू गेम, दैट हाउ वी इम्प्लीमेंटेड द वैल्यू गेम। तो वैल्यू गेम बेसिकली कंटेन्स थ्री एक्सरसाइजेस। सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग प्रोग्राम आउटकम्स, second one is imaginary budget and gift, and third one is comparing tangible and intangible outcomes. So as you can see in the images, so basically first of all we request participant to sit in a circle and then we ask a question to them in exercise 1 कि आपके लिए ये प्रोग्राम कैसा बेनिफिट था, आपको क्या बेनिफिट हुआ प्रोग्राम से, right? And then we circulate a sticky note amongst the participants and we request them to write one benefit in one sticky note. Okay, और फिर वो सारे स्टिकी नोट्स को हम कलेक्ट करके हम चार्ट पेपर पे अटैच कर देते हैं एंड वी रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू एक्सप्लेन अबाउट मोर अबाउट द program benefits that they gain. Okay, as you can see in the photograph one, and we request participants to arrange them in a specific order from most value to least values outcomes. तो ये हो गया हमारा exercise 1. And in exercise 2 we give them a hypothetical scenario. So in hypothetical scenario we ask them that imagine it's your birthday coming, right? और आपको आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से गिफ्ट मांगने हैं। सो दे कैन आस्क अप टू 3 गिफ्ट्स, मैक्सिमम 3 गिफ्ट्स एंड मिनिमम 1 गिफ्ट। तो ये सिनेरियो, हाइपोथेटिकल सिनेरियो हम उनके सामने रखते हैं, तो आप कौन सी गिफ्ट मांगेंगे, आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, राइट? और हमें उनको इमेजिनरी बजट भी देना है कि यू कैन नॉट आस्क अ गिफ्ट मोर देन 1 लाख रुपीज़। तो वो गेम ऐसे कि ये इंटरेस्टिंग गेम बन जाता है। फिर अगेन वी सर्कुलेट स्टिकी नोट अमॉन्ग द पार्टिसिपेंट्स एंड वो उनकी जो गिफ्ट्स है वो नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे कि आप इमेज नंबर 2 में देख सकते हैं। फिर हम वो सारी गिफ्ट को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं और सारे आउटकम्स और जो गिफ्ट्स है उसको हम एक पर्टिकुलर स्टिकर असाइन कर देते हैं, जिससे ये मेथड और इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बन जाए। ठीक है। एंड इन एक्सरसाइज 3 which is very crucial and important,
जहाँ पे हमें कंपेयर करना है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि प्रोग्राम बेनिफिट्स को उन्होंने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रख दिया है, तो अभी हमें जो प्रोग्राम बेनिफिट्स के स्टिकर्स है, सो वी हैव टू प्लेस गिफ्ट्स स्टिकर्स अलोंग विद द प्रोग्राम के बेनिफिट्स। तो फिर उनसे पूछना है कि अभी आपके लिए क्या ज़्यादा वैल्यू रखता है, जैसे कि दे हैव टू कंपेयर सर्टेन गिफ्ट्स विद द प्रोग्राम बेनिफिट्स, उन्होंने जो अरेंज में ऑर्डर रखा है उसमें। तो फिर वो जो भी इंटरेक्शंस करते हैं वो हमें नोट डाउन करने हैं, और फिर आफ्टर दिस एक्सरसाइज हमें पता चलता है कि बेनिफिशियरीज के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सारे इंटेंजिबल इंटेंजिबल प्रोग्राम बेनिफिट्स को मटेरियल गिफ्ट के साथ कंपेयर करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हम बेनिफिशियरी को हम एक्सप्लेन भी करते हैं कि जैसे कि आपने देखो, जैसे कि ओवर मोबाइल फ़ोन गिफ्ट आपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा वैल्यू दी है, तो आपके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम पार्टिसिपेंट के साथ टू वे कम्युनिकेट करते हैं, और ये मेथड काफ़ी इंटरैक्टिव भी बन जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, हमें काफ़ी क्वालिटेटिव इंसाइट्स भी पता चलते हैं इसमें। यस। Right. Thank you so much, Jay. That was a very nice one and a brief introduction for a value game for all of us. Um, हम्म Before I actually ask a question to you, I just wanted to say that please note that we had mentioned that this session would be in Hindi and English both. I understand there are a lot of requests coming in to speak in Hindi, but uh, since it's happening based out of India and we already had said that it will be a bilingual session, I apologize for that. Uh, हम्म and all the questions that are coming up, respective to value game, I'll take that up with you, Jay, later. And I just have one question, Jay, and I just मुझे जानना था कि आपने value game करवाया and everything. You made comparison between tangible and intangible gifts. I was thinking कि ऐसा कुछ interesting था that came up from using this tool that was very insightful and surprising for you as someone who was on field and involved in this process. Something you thought we can all हम्म also learn. Yeah. यस यस। सो इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको एक्चुअल वैल्यू किन चीज़ की वो करते हैं, उनको पता चला कि उनके लिए मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा प्रोग्राम बेनिफिट्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो हमें ये इंसाइट मिला कि जैसे कि मोबाइल फ़ोन है या बाइक है या सो एंड सो गिफ्ट है, मटेरियल चीज़ है, तो वो ऐसा बताते हैं कि हमारे पास ये पर्टिकुलर स्किल्स हो गए, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स है या फिर कॉन्फिडेंस है या जॉब प्लेसमेंट है, तो हम ये चीज़ों से हम ये मटेरियल चीज़ें तो खरीद सकते हैं, इसलिए हमने ये प्रोग्राम बेनिफिट्स को ज़्यादा वैल्यू दी है। ये पॉइंट नंबर वन था की इनसाइट्स। और दूसरा ये था कि जैसे कि हमने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेंट्स बिठाए थे, पर वो अननोन थे, मतलब एक दूसरे को जानते नहीं थे। पर ये सिंस इट वाज अ वेरी इंटरैक्टिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, वो इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे थे कि वो काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और वो काफ़ी इन्वॉल्व हो गए थे एक्टिविटी में, और वो फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मतलब कहने का मतलब है कि कभी कभी कैसा होता है कि बेनिफिशियरी जो है वो कभी कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कभी कभी ग्रुप डिस्कशंस में। तो वैल्यू गेम में ये बेनिफिट होता है हमें कि इवन दो द पार्टिसिपेंट्स आर अननोन, दे टेंड टू इन्वॉल्व वेरी मच, वो काफ़ी इन्वॉल्व हो जाता है और फुल्ली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारे की इनसाइट्स थे जी। All right. Thank you so much, Jay. Uh, So everyone asking कि recording share होगा नहीं होगा? Yes, please, we'll share the recordings. Uh, and बाकी जो भी questions हैं जय value game related, I'll pick one or two after Vaishali and Urkesh are done. Uh, let's give everyone a space to share and then move on to the Q&A section. Uh, All right. Thank you so much, Jay. Now over to Vaishali. Vaishali is going to talk about Dotmocracy. By the way, ये वैल्यू गेम और डॉटमोक्रेसी भी मैंने यहीं आके सीखा है, सो थैंक यू सो मच.
एंड आई होप कि आप सबके लिए भी बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहे. ऑल राइट, ओवर टू यू वैशाली. थैंक यू सो मच जूही मेरा इंट्रोडक्शन के लिए और सभी को मेरा नमस्कार. तो मैंने फील्ड पे काफ़ी काम किया है अलग अलग पार्टिसिपेटरी टूल मेथड पे. ये पार्टिसिपेटरी टूल मेथड यूज़ करके मैंने काफ़ी डेटा कलेक्शन किया है, जिसमें मैंने महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, स्टूडेंट के साथ और फार्मर के साथ ये काफ़ी काम किया है. तो अभी मैं आपको डॉटमोक्रेसी मेथड के बारे में बताना चाहूँगी. पर मैं उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप में किसी को भी डॉटमोक्रेसी टूल के बारे में पता है? अगर पता है तो आप थोड़ा चैट बॉक्स में लिख सकते हो. Wow. Especially, a lot of people are saying no. So you have a bigger responsibility now. कि सबको समझाना. And they haven't heard of this before. All right. Thank you so much, everyone, for sharing. थैंक यू सो मच आपने ये जो मुझे शेयर किया उसके लिए. बट डॉटमोक्रेसी यानी क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि डॉटमोक्रेसी जिसे वोट या आइडिया रेटिंग से भी जाना जाता है. जैसे कि डॉटमोक्रेसी एक मेथड है जिसे वर्बली इंटरेक्शन से ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड माना जाता है. तो ये मैं आपको एक केस स्टडी के थ्रू बताना चाहूंगी, ठीक है. तो मैंने 2016 में गुजरात में मोरैया गांव है जिसमें नेबुला इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट का मैं स्टडी कर रही थी, जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले जो लेबरर्स हैं, जिसकी ज़रूरियातों को समझने के लिए ये मैंने पूरी स्टडी की थी, ठीक है. तो उनकी हाउसिंग कंडीशन, स्वास्थ्य, शिक्षा ज़रूरियातों को समझने के लिए ये मैंने स्टडी की थी. तो ये प्रोजेक्ट में लगभग 500 लेबरर्स थे जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर मोरैया में दिया था. तो नेबुला ने लेबरर्स के बच्चों के लिए वहां पे एक छोटा सा स्कूल खोल के दिया था. वहां पे उन्होंने एक लेबर कॉलोनी ओपन की थी. टॉयलेट जैसे कि रेसिडेंशियल में लेबरर्स को मिला था उसमें टॉयलेट फैसिलिटी दी थी. फिर फ्यूल जो खाना पकाने वाला होता है वो फ्यूल की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई थी नेबुला की तरफ से. तो ये सारी फैसिलिटी उनको मिली थी. पर मुझे ये समझना था कि जो लेबरर्स नेबुला में रह रहे हैं उनको दूसरे लोकेशन से यहाँ के लोकेशन पे रेसिडेंशियल कंडीशन को कंपेयर मुझे करना था कि उनको कैसा लग रहा है. तो इसीलिए ये मैंने प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया था. तो ये मॉनिटर करने के लिए मैंने ये डेमोक्रेसी टूल का इस्तेमाल किया था. तो अभी आपको क्या लगता है कि ये टूल मैंने कैसे इस्तेमाल किया होगा, वो थोड़ा बता सकते हो आप मुझे? चैट बॉक्स में डाल सकते हो. Vaishali is asking if anyone of you know what is the steps for going ahead ओके, in democracy. ओके, ओके, ओके. तो मैंने इसे इसलिए भी इस्तेमाल किया था कि जैसे कि महिलाओं के अपने विचार या राय शेयर करने का पहले तो मौका मिले, इससे उनको प्राथमिकता मिले और उससे उनका जो पर्सपेक्टिव हो है एक प्लेट उस पर्सपेक्टिव को एक प्लेटफॉर्म मिले, जिसे प्रोसेस में उन्होंने नेबुला से मिली गई सुविधाओं के बारे में रेटिंग की थी. उन्होंने ये रेटिंग बच्चों के स्कूल की जरूरियातों, हेल्थ सुविधा, सैनिटेशन सुविधा के और पानी के बारे में रेटिंग किया था. तो ये मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया था, ठीक है. तो पहले तो मैंने वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था तो उसको मैपिंग किया और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैंने एक लिस्ट बना लिया था चार्ट पेपर पे, ठीक है. दूसरा स्टेप ये था कि महिलाओं को एक एक चार्ट पेपर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने प्रोजेक्ट के बारे में जो लिखा था उनकी पूरी जानकारी दी, ठीक है, क्योंकि वहां की जो महिलाएं थी उनको शायद थोड़ा पता हो या ना हो, इसलिए मैंने उनको पूरी एक जानकारी दे दी. फिर तीसरे स्टेप में ये था कि इसमें भी 2 फेसेस थे. 2 फेसेस में स्टेप 3 में मैंने उनको कलर कोडिंग किया था, जिसमें 3 कलर की उनको बिंदी दे दी थी, जिसमें एक कलर था ग्रीन कलर की बिंदी थी, एक येलो कलर की बिंदी थी
और एक रेड कलर की बिंदी मैंने सबको दे दी थी। तो ये पार्टिसिपेट में 20 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो 20 महिलाओं का मैंने 5-5 अलग अलग ग्रुप बना लिए पहले। तो फिर सबको एक एक चार्ट पेपर दिया और 3 कलर की सबको बिंदी दे दी, रेड, येलो और ग्रीन। और बिंदी देने के बाद मैंने उनको समझाया पहले। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वहां पे नेबुला इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेबर को दिया गया है रहने के लिए, तो वहां पे मैंने नल का एग्जाम्पल लिया कि जैसे कि ग्रीन बिंदी है, अगर नल में पानी आ रहा है, नल ठीक ठाक है, तो वहां पे ग्रीन बिंदी लगानी है। अगर नल है बट पानी नहीं आ रहा है, तो वहां पे येलो बिंदी लगानी है। और तीसरा ये था कि अगर नल भी टूटा हुआ है, पानी भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे उसको रेड बिंदी लगानी थी। तो ऐसे मैंने उनको पहले ये सारी चीजें समझा दी थी। तो ये एक्टिविटीज करने के बाद सारी महिलाओं के साथ में लाके हमें 2 चीजें एक्सप्लोर की थी। पहला था उन्होंने कलर बिंदी लगाई थी उनके कारण, और दूसरा था जो सुविधाओं को लेके जो कमी थी उस पे विचार। तो ये सब डेटा कलेक्ट करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद निकल के आया। तो इस मॉनिटरिंग के बाद हमें समझा कि औरतों की, बच्चों की पढ़ाई, उनकी सुरक्षा सबसे टॉप लेवल पे थी। उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे थे, और फुल टाइम यानी वहां पे सुबह से 9 से लेके शाम को 3 बजे तक वहां का स्कूल ओपन रहता था। तो उनको खाने का, सुबह का नाश्ता, वही सब कुछ मिल रहा था बच्चों को। तो उनका ये भी था कि डे केयर जैसी सुविधा भी उनके बच्चों को मिल रही थी, जिससे 2 इम्पोर्टेंट इशू एड्रेस हो रहे थे। पहले नंबर का ये था कि वो औरतें खुद से अपना कंस्ट्रक्शन काम में कंटिन्यू कर पा रही थी, और इनकम जनरेट भी हो रही थी औरतों की। सेकंड ये था, बच्चे भी काम पे नहीं जा रहे थे और अपनी पढ़ाई सेफली स्कूल में कर पा रहे थे। तो ये मैंने यहाँ पे महिला ग्रुप में ये डेमोक्रेसी मेथड यूज किया था। Thank you, Vaishali. Yes, thank you, Vaishali. इतना अच्छा बोलने के लिए. ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए भी हैं वैशाली. बट बिफोर मूविंग ऑन, मैं खुद से एक सवाल पूछना चाहूंगी. आपको क्या लगता है इस टूल का सबसे बड़ा चैलेंज क्या हुआ होगा, लाइक या फिर कोई कॉन्स बोल सकते हैं ना, हर चीज का अच्छा बुरा होता है, प्रोज एंड कॉन्स इफ आई हैव टू से. सो अगर एक कॉन आप बता सकते हो जो आपको फील हुआ हो व्हाइल यूजिंग डॉटमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी मेथड में क्या था कि महिलाओं के साथ था। ठीक है, मेरा ये मेथड पूरा मैंने उनके साथ यूज किया था। तो पहले ये था कि ये जो मेथड में टाइम ज्यादा लगता है उनको समझाने का, उनके साथ एक एक एक्टिविटीज करने का, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो उस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि टाइम से हम ये कैसे मेथड पे काम कर सके और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। तो टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस है। राइट. थैंक यू वैशाली. जस्ट वांटेड टू ऐड टू वैशाली, इन्होंने जो बोला कि सबकी औरतों की सारी आवाज़ को प्राथमिकता मिली, एंड डेफिनेटली लाइक उनको एक काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे वो वोट कर पा रही है. उनका जो भी सोशल स्टेटस है उसके सब चीज़ों को साइड में रख के, एंड it also increased their confidence in themselves. They were able to express themselves through rating ही सही. And of course, I think Vaishali ने जैसे बोला, they also felt very counted and visible in community decision making. So जो भी infrastructure projects related interventions थे उसको monitor करने के बाद वैशाली could say that from women's perspective, education infrastructure was a priority, yeah, health was a priority. And biggest thing that बच्चे पढ़ पा रहे थे एंड औरतें अपना इनकम भी कंटिन्यू कर पा रही थी because of the facilities that were there. All right. Thank you, Vaishali. Now I'll be moving on to my last but not the least, Urkesh. Urkesh, over to you now.
And Urkesh is going to talk about two of the key components of participatory rural appraisal. Um, so, over to you, Urkesh. Thank you so much, Jay, to introduce myself. So basically, हम बात करने वाले हैं आज कि रिसोर्स मैपिंग के अंदर ट्रांजेक्ट स्वॉप्स एंड रिसोर्स मैपिंग के अंदर स्पार्टिसिपेशन का मेथड है, हम उसको कैसे एलोबरेट कर सकते हैं। जैसे कि पार्टिसिपेट रूरल अप्रेजल। तो पार्टिसिपेट रूरल अप्रेजल के अंदर दो मेथड है, ट्रांजेक्ट स्वॉप्स एंड रिसोर्स मैपिंग। राइट, तो ये दोनों मेथड के बारे में अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये जो दोनों मेथड है ये किसी ने कहीं पे अप्लाई की है कि नहीं। Oh, we are getting a very interesting response, Urkesh. बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया. Yes, 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 yes. Very few are saying no. Some is saying oh, they are saying yes. Okay. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांजेक्शन के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो ट्रांजेक्शन किया था वो 2022 के अंदर हमने बद्रेवाला विलेज था हमारा, जो बीकानेर राजस्थान के अंदर था। तो वहाँ पे हमने टाटा पावर के साथ मिलके हमने वहाँ पे एक नीड असेसमेंट स्टडी किया था। तो हम ये पार्टिसिपेटिंग मेथड के दौरान हम जानना चाहते थे कि गांव में कौन कौन से विलेजेस, मतलब गांव में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो हम ये ट्रांजिट वर्क्स एंड रिसोर्स मैपिंग के जरिए हम जानना चाहते हैं। सो बेसिकली ट्रांजिट वर्क्स होता क्या है? तो ट्रांजिट वर्क्स बेसिकली एक कम्युनिटी है विलेज लेवल पे। तो उसको एक ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, जो के लोकल लोकल पीपल के साथ या फिर वहाँ के जो मेंबर है, वुमेन्स पार्टिसिपेंट है, तो उनके साथ मिलके हम एक ट्रांजिट वर्क करते हैं। वो ट्रांजिट वर्क के दौरान हम लोग पूरे गांव में ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वहाँ पे वाटर सोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं। वाटर सोर्सेज है तो कैसा है वहाँ पे, स्कूल, आंगनवाड़ी, फार्म लैंड्स, वो सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करते हैं। और कम्युनिटी के साथ वो सारे कितने साल से है, कब लगाया गया है, ठीक है, वहाँ पे रिवर है आसपास, तो रिवर का किस तरह से आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें हम ट्रांजिट वर्क के दौरान हम पूछते हैं। सेकेंड थिंग कि रिसोर्स मैपिंग, हम ट्रांजिट वर्क करने के बाद हम वो सारे जो भी है, जो वहाँ के जो यूथ है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके साथ बैठ के हम एक रिसोर्स मैपिंग करते हैं, उनके पूरे गांव का मैप एक रेडी करते हैं कि आपके लाइक मैपिंग, लाइक क्लस्टर वाइज हम मैपिंग करते हैं पूरा, पूरे गांव का मैप करते हैं। तो उस हिसाब से हम पूरा रिसोर्स मैपिंग करते हैं, राइट। सो बेसिकली इसके अंदर ट्रांजिट स्वैप में हम, हाँ, वेट, सो हम इस तरह से पूरा रिसोर्स मैपिंग करते हैं जिसके अंदर पूरे गांव का एक व्यू पता चलता है कि पूरे गांव में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। जैसे कि स्कूल बिल्डिंग, वाटर सोर्स, टेम्पल्स, सीएससी क्लिनिक्स, फार्म लैंड्स, कितने क्लस्टर्स है गांव में, क्लस्टर वाइज कहाँ पे क्या चीजें लोकेटेड है। तो ये सारी चीजें हम वहाँ पे करते हैं इसके अंदर। सो बेसिकली हमने जब ये प्रोसेस करते, एक बड़ा सा चार्ट पेपर पे हमें पूरी प्रोसेस करते हैं। मीन्स गांव में बैठ के पूरा उनके साथ हम ड्रॉ वगैरह करते हैं कि पूरे सिस्टम को, पूरे क्लस्टर को हम पूरा लोकेट करते हैं इसके अंदर। या नेक्स्ट जी। All right. So Urgesh, my actually तो question was only कि अभी आपने ट्रांजेक्ट वॉक और रिसोर्स मैपिंग के बारे में बताया, और एक्चुअली जैसे मैं देख रही हूँ that a lot of people have used it. Would like to know कि उस स्पेसिफिक स्टडी रिलेटेड क्या इम्प्लीमेंटेशन आउटकम्स हुए थे, if you could share some. या सो स्पेसिफिक स्टडी के अंदर से ये निकल के आया था कि वहाँ की जो महिलाएं थी, ठीक है, तो वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। तो रिसोर्स मैपिंग के जरिए, ट्रांजिशन के जरिए उनका, वो लोग अच्छे से बोल पाए, ठीक है। जो वहाँ के जो यूथ थे बहुत ही अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पाए। हमने वहाँ पे जितने भी वाटर रिसोर्सेज थे वो सारे हमने वहाँ पे फाइंड आउट किए। All right. Okay. Um, so before moving on, I think I'll just take a bit here, stop share my screen, and I see everyone. Um, I think now we can do is bit of a question and answer and have everyone together.
So I have received a lot of questions for both of you, or for all three of you, sorry. How about I actually begin with Jay. Jay, there's a very specific question that came for you. Can you explain how the data analysis was done in value game? Summary share that what seems to me that it is all manual data analysis. Is there a way to automate this process, or is the data analysis for value game all done by all done manually by exporting this to maybe Excel and then taking it forward from there? Um, just a second, Jay. So I'll direct one question to Jay, and then I will direct one question to Vishali and Urgesh. And if the time allows, we'll take up more questions. Okay. For now, first question is for Jay. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा होता है कि वैल्यू गेम में हमारा जो स्टैंडर्ड फोकस ग्रुप डिस्कशन के जो हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं उनके रिस्पॉन्सेज तो आपको क्वालिटेटिव ही मिलेंगे, मतलब तो वो रिस्पॉन्स हमें नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो अगर जैसे कि वो आपको रिस्पॉन्स को एनालाइज करना है तो यू कैन यूज अ डिफरेंट टूल्स विच आर अवेलेबल लाइक डी डूज एंड एवरीथिंग, तो आप वो क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज को वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। एंड फॉर वैल्यू गेम, तो स्पेसिफिकली वैल्यू गेम एक ऐसा मेथड है जिसमें क्वांटिटेटिव डेटा भी होता है उसमें। तो जैसे कि हम जो टेंजिबल गिफ्ट्स है, तो टेंजिबल गिफ्ट्स को हम जब मोनेटाइज करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू को हम प्रोग्राम बेनिफिट से कंपेयर करते हैं। मतलब जैसे कि बेनिफिशियरी कंपेयर करके देते हैं, फिर हमें उसका जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल हमने टोटल 9 एफजीडीज कंडक्ट की थी, तो आउट ऑफ 9 एफजीडीज कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन वर्ड मतलब जो है प्रोग्राम बेनिफिट वो कितनी बार निकल के आया था वो हमें काउंट करना है, और वो पर्टिकुलर आउटकम को बेनिफिशियरी ने कितनी मॉनिटरी वैल्यू असाइन की थी वो हमें देखना है। ठीक है, फिर आप वो पर्टिकुलर प्रोग्राम बेनिफिट को काउंट करेंगे और वो उसको पर्टिकुलर जो मॉनिटरी वैल्यू असाइन की है उसको आप काउंट करेंगे। ठीक है, फिर उसको आप काउंट करके आप उसकी मीन निकालेंगे, मीन, और फिर सारे एफजीडी के सारे जो प्रोग्राम बेनिफिट्स है उसका वेटेड एवरेज मेथड से कैलकुलेशन करके जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी यू कैन ऐड दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन SROI कैलकुलेशन, यूज दैट इन SROI कैलकुलेशन। अब जैसे कि वी हैव यूज्ड डिफरेंट फार्मूला इन एक्सेल फॉर कैलकुलेशन, so quantitative values के लिए you can use different formulas in Excel and such as, and for qualitative you can use deduce and everything. Yes. All right. Jay, there is some request on like अगर कोई material हो कभी share करने के लिए on value game. I think just सबके context के लिए ऐसे जय जैसे बोल रहे हैं that it was used in SROI study, social return on investment. So please also understand that जहाँ उन्होंने value game use किया was in context of SROI. जो भी यहाँ पे हम case studies वगैरह share कर रहे हैं is coming from one context और उनके खुद के experience से। All right, I think Vaishali के लिए भी we had a lot of questions and I will just come to Vaishali. Give me a second. All right. आपके लिए एक क्वेश्चन ये था जब आप डेमोक्रेसी कर रहे थे तो who all were the stakeholders for the process? तो वहाँ पे और कौन कौन था जो stakeholders थे जब आप डेमोक्रेसी वाली एक्सरसाइज कर रहे थे? यस, जब मैं डेमोक्रेसी मेथड कर रही थी तो वहाँ पे मतलब वहाँ के जो स्टेक होल्डर थे, वहाँ पे जो लेबर कॉलोनी बनाई थी, तो उसमें ये था, एक था एजुकेशन का था बात, ठीक है। तो उसमें जो पढ़ाई कराए रहे थे वो एक वुमन अवेलेबल थी वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टेक होल्डर बन गया एजुकेशन, ठीक है। फिर वहाँ पे हेल्थ का था, छोटा सा क्लिनिक ओपन किया था, तो वहाँ पे अवेलेबल थे डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स, ठीक है। तो वहाँ पे वो दोनों अवेलेबल थे। फिर आता है लेबर कॉलोनी की फैसिलिटी के रिगार्डिंग। तो जिन लोगों ने लेबर कॉलोनी मतलब दूसरे लोकेशन में लेबर को इतनी सारी फैसिलिटी नहीं दी जाती है, मतलब बच्चों का स्कूल और उनके मतलब
कच्चे पक्के वो रेसिडेंशियल बना के दिए जाते हैं, तो यहाँ पे ये अलग चीज था, पूरा कॉन्सेप्ट अलग था कि यहाँ पे अच्छा सा उनको रेसिडेंशियल बना के देते हैं, बच्चों के लिए गार्डन बना के देते हैं, पढ़ने के मतलब खेलने के लिए, पढ़ने के लिए स्कूल होता है, वहां पे बच्चों का खाना पीना सब, मतलब सोना भी वहां पे 3-4 बजे तक होता है बच्चों का। और वहां पे हेल्थ के अगर कोई इश्यू होते हैं मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे या उनके मतलब कॉलोनी में भी, तो तुरंत ही उनको मतलब ये सब फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये दूसरे लोकेशन पे अलग था। तो एक हेल्थ हेल्थ का भी स्टेक होल्डर वहां पे था। तो ये चीजें 4-5 थी वहां पे एज अ स्टेक होल्डर की तरह। राइट। आई थिंक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वैशाली कि क्या पेरेंट्स चिल्ड्रन दोनों इन्वॉल्व थे जब आप ये रेटिंग कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इसमें ये था कि वुमन अवेलेबल थी ओके। और 4-5 मेल थे, बट वो एक हम्म कि मतलब वो सिर्फ देख रहे थे दूर से ही। बट वो है कि हम्म वुमन सारा घर का काम तो वुमन ही करती है, ठीक है। तो मतलब बच्चों को छोड़ना स्कूल में, रेसिडेंशियल में रहना, खाना बनाना, सब मतलब कुछ भी घर का काम हो वो वुमन ज्यादा करती है, वो तो आपको भी पता है, राइट, सबको भी पता है। तो उनको पता था कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो उनका ये कहना था कि मतलब हमारे साथ हम तो लेबर वर्क करते हैं, बट हमारे हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे ना करें आगे जाके। तो हम इस वजह से काम कर रहे हैं, तो मतलब हमारे बच्चों की पढ़ाई साथ साथ में कंप्लीट हो, तो उनको ये बेस मिल रहा था यहाँ से। तो ये उनके लिए एक अच्छी बात थी और उनकी सेफ्टी के लिए। तो कभी कभी कंस्ट्रक्शन लाइन पे देखा है कि बच्चों को साथ में लेके जाते हैं, कुछ हादसा हो जाता है या बच्चे भी साथ साथ में मतलब काम करवाने लगते हैं। तो ये चीज निकल के आ रही थी कि बच्चों को सेफली पढ़ाई मिल रही थी और खाना पीना सब अच्छा मिल रहा था वहां पे। ऑल राइट। थैंक यू वैशाली। आई विल कम टू उर्गेश, पर उर्गेश जो ये क्वेश्चन है थोड़ा इन जनरल क्वेश्चन है। सो बेसिकली सवाल ये है कि हाउ मतलब कैसे कंक्लूजन पे आते हो आप कि कौन सा टूल यूज करना है फॉर विच काइंड ऑफ डेटा कलेक्शन? सो फॉर एग्जांपल अभी आपने नीड्स असेसमेंट के लिए ट्रांजैक्ट वक्त और पीआरए सजेस्ट किया, बट हाउ डिड यू केम टू अ कंक्लूजन कि ये टूल यूज करना चाहिए था? इफ यू कैन शेयर फ्रॉम दिस एग्जांपल और अदर एग्जांपल आल्सो चलेगा। सो बेसिकली हमको वहाँ पे गांव की जो नीड है, तो उसके हिसाब से हम रिसोर्स मैपिंग और ट्रांजेक्शन की जो मैंने पार्सिंग मेथड बताई, वो हम वैसे वहाँ पे अप्लाई कर सकते। वो डिपेंड करता है विलेज टू विलेज, डिपेंड करता है विलेज टू विलेज कि वहाँ पे वो नीड है कि नहीं। बट क्या, तो मेरा नेक्स्ट सवाल फिर उर्गेश ये होगा कि जो बाकी टूल्स जैसे वैशाली या जय ने किए हैं या फिर और भी कोई टूल्स हैं, कैन वी यूज दैट? या फिर इफ यू कैन गिव एग्जांपल कि हम कौन कौन सी स्टडीज में और ये सब टूल्स यूज कर सकते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं? जैसे अभी आपने ड्राउट प्रोन रीजन में बात किया नीड्स असेसमेंट का, तो बिकॉज इट वाज अ नीड्स असेसमेंट और कम्युनिटी में था इसलिए ये स्टडी था। बट जहाँ पे जय और वैशाली ने वैल्यू गेम और डेमोक्रेसी की बात की है, सो where all can we use all these different kinds of tools in your experience? If you can share some with us. मोस्टली ट्रांजेक्शन में पार्टिशन मेथड मोस्टली नीड एसेस में ही आई थिंक मोस्टली यूज होता है। जो भी विलेज लेवल पे कोई भी एक्टिविटीज होती है, तो उसमें ही उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं मोस्टली ज़्यादा। All right. I have one more question for Jay that came in. Uh, how did you capture the qualitative data for SROI study for this specific जब आपने value game use किया? Okay, so first of all, uh, during our first exercise of program outcome, जैसे कि जो ही आप अगर स्क्रीन शेयर कर पाए तो आई बी एबल टू एक्सप्लेन लिटिल बिट बेटर द पीपीटी, द फोटोग्राफ स्पेसिफिकली. Sure, I will do that. I'll do that. Give me 1 second. I'm sharing. Mm, yes, I think you can share a bit on like
वापस ऑन द प्रोडक्ट लिस्ट, बिकॉज ये वो भी एक अलाइंड क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे बनी थी, किसी ने पूछा था। यस यस, आई आई तो अंडरस्टैंड, आप यस। ये एक्सप्लेन कर सकते हो, आप थोड़ा ये भी बता सकते हो बिट ब्रीफली कि क्वालिटेटिव डेटा कैसे आपने कैप्चर किया। ओवर टू यू। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही मैंने बताया आपको कि वैल्यू गेम एक्सरसाइज was conducted using three different exercises. So first was identifying the program outcomes. तो जैसे कि प्रोग्राम आउटकम्स के लिए हमने स्पेसिफिकली क्वेश्चन ये डिज़ाइन किया गया था कि हम बेनिफिशियरी को पूछेंगे कि आपको प्रोग्राम से क्या बेनिफिट हुआ है, ठीक है, और उनको जो भी प्रोग्राम से बेनिफिट हुआ हो वो उनको स्टिकी नोट में लिखना था, राइट। एक स्टिकी नोट में एक ही प्रोग्राम उनको बेनिफिट लिखना था। फिर तो हम स्टिकी नोट वापस कलेक्ट करके लेते थे और चार्ट पेपर में अटैच कर देते थे। फिर हम उनको पूछते थे कि आप ये प्रोग्राम बेनिफिट के बारे में थोड़ा और इलाबोरेट कीजिए, तो हम वही प्रोग्राम बेनिफिट के नीचे वही बेनिफिट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते थे। कम्युनिकेशन, तो आप कम्युनिकेशन में बताएंगे कैसे इंप्रूव हुआ आपका कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा, टेक्निकल स्किल्स कैसे इंप्रूव हुई, करियर प्रोग्रेशन में आपका करियर प्रोग्रेशन में किस तरह से आपको ये प्रोग्राम ने हेल्प की। तो ये सारा रिस्पॉन्सेस हम ये वो पर्टिकुलर आउटकम के नीचे हम लिख लेते थे। तो हमें एग्जैक्ट मतलब पता चलता था कि बेनिफिशियरी ये पर्टिकुलर आउटकम के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक चीज़ हो गई। फिर दूसरा कि हम जैसे कि वो पर्टिकुलर प्रोग्राम बेनिफिट था उसको एक टीकर स्टिकर से हम उसको असाइन कर देते थे, स्टिकर। तो वो आइडेंटिफाई इजीली हो जाता था। जैसे कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन के लिए हमने एक स्टिकर रखा था, जैसे कि आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस के लिए, सारे प्रोग्राम आउटकम्स के लिए। तो उसमें फिर उसके बाद हम जो हाइपोथेटिकल सिनेरियो जो हम क्रिएट करते थे उनके लिए कि बर्थडे गिफ्ट उनको कौन सा पसंद है, फिर उनको वो चार्ट पेपर में लिख लेते थे कि हमें ये बर्थडे गिफ्ट चाहिए। फिर हम मॉडरेटर क्या करते थे, फैसिलिटेटर, कि सारे गिफ्ट के बाजू में उनको वैल्यू पूछते थे। जैसे कि ये गिफ्ट है तो आप क्या सोचते हो कि ये पर्टिकुलर फ़ोन है, तो ये पर्टिकुलर फ़ोन आपको क्या लगता है कि कितने अमाउंट का होगा जो आप अपने रिलेटिव और फ्रेंड से मांग रहे हैं। तो वो अमाउंट जो बोलते थे हम वो लिख लेते थे वहाँ पे। मतलब एक गिफ्ट है, दो गिफ्ट है, तीन गिफ्ट है, जो भी है, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, फिर हम दोनों को कंपेयर करते थे। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे के सारे प्रोग्राम बेनिफिट्स है, ठीक है, उसके नीचे मटेरियल आउटकम मतलब मटेरियल गिफ्ट सारी रखी हुई है। तो मटेरियल गिफ्ट्स में आप देख सकते हैं कि हम पूछते थे कि अभी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वॉच है या फिर नॉलेज है। the knowledge that you gain from the program is more important, और द मटेरियल गिफ्ट मतलब आपको जो वॉच आपने सिलेक्ट की है वो, या फिर नॉलेज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर या लैपटॉप मतलब ऐसे हम कंपेयर करते थे। तो वो खुद से ही स्टिकर्स को ऊपर रख देते, मतलब जो जिन्होंने स्टिकर्स को ऊपर रखा है दैट मीन्स वो उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। फिर ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी वो जो भी डिस्कस करते थे वो हम पूरा नोट डाउन कर लेते थे कि उनके थॉट प्रोसेस क्या है, कि वो क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं ये सारी चीज़ों को, मतलब मटेरियल चीज़ों से प्रोग्राम बेनिफिट्स को। और कुछ मतलब हार्डली ऐसे बेनिफिशियरीज रहे होंगे जिन्होंने मटेरियल चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों ने प्रोग्राम बेनिफिट्स को ही दिया है, बट काफ़ी मिनिमल नंबर था उनका, वैसा कह सकते हैं। बट मेनली ये एक्टिविटी से पता चलता है कि बेनिफिशियरी इंटरवेंशन के बारे में क्या सोचते हैं और उनको इंटरवेंशन से क्या फ़ायदा हुआ है। तो ये मेन एक्टिविटी का ये पर्पस है। यस, आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। You are quite famous, I think, because सबसे ज़्यादा questions आपके लिए आ रहे हैं. But also like value game is, I think, the most So value interesting. game is so it is also a very difficult topic to explain in one webinar. So it takes a little bit time to understand. बट ये एक ऐसा पार्टिसिपेटरी मेथड भी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं तो ये भी हम यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा क्वालिटेटिव इंसाइट्स हमें पार्टिसिपेंट से ज़्यादा मिलेंगे। तो Right. विच इज़ मोर प्रेफरेबल। यस। Yes. किसी ने एक और सवाल पूछा है that how do you digitize this? Maybe I think ये शायद हम सारे टूल्स के रेफरेंस में भी बात कर सकते हैं कि जब आप पार्टिसिपेटरी टूल्स करते हो आप ये कैसे डिजिटाइज करते हो. I don't know. इज दिस क्वेश्चन टू मी, जूही?
I think it was to you, but maybe yes, I think it was to you. It wasn't तो mentioned specifically, but maybe. okay, so in value game, so basically there are certain questions and then this activity comes. So जैसे कि certain questions होते हैं तो उनको हम जैसे कि नो एक्सेल शीट में हम उसका ट्रांसक्रिप्ट डिज़ाइन कर देते हैं, फिर जो क्वेश्चन है उसके नीचे पर्टिकुलर आंसर्स लिख देते हैं, तो ये क्वालिटेटिव डिटेल की बात हो गई। अभी वैल्यू गेम से हमें जो इनपुट मिला है उनके लिए हम क्या करते थे कि सपोज इन एक्सेल शीट ऑन योर लेफ्ट कि जो भी प्रोग्राम बेनिफिट्स है, जैसे कि आप फोटो नंबर 1 में देख सकते हैं, तो सारे बेनिफिट्स को हम लेफ्ट साइड पे एक कॉलम में लिख लेते थे हम पूरा उसको। फिर क्या करते थे कि उसके सामने नंबर ऑफ एफजीडी हमने कितनी कंडक्ट की है वो हम ऐसा पूरा मेंशन कर देते थे रो में उसको। फिर वो कितने टाइम वो पर्टिकुलर प्रोग्राम आउटकम मेंशन हुआ है वो नंबर लिखते थे। फिर उसका हम डिवीजन करते थे टोटल नंबर ऑफ एफजीडी से, राइट। मतलब जैसे कि कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस 9 एफजीडी में 6 बार कॉन्फिडेंस मेंशन हुआ है, ओके। तो हम उसका कैलकुलेशन करते थे और पर्टिकुलर जो वैल्यू कॉन्फिडेंस को असाइन हुई है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि किसी स्टूडेंट्स ने कॉन्फिडेंस को कंपेयर किया था लैपटॉप के साथ और लैपटॉप की वैल्यू 50,000 थी। सो फॉर दैट पर्टिकुलर एफजीडी वी हैव असाइंड 50,000 वैल्यू टू कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो हमारे हो गया एक एफजी में कॉन्फिडेंस की वैल्यू 50,000 थी, दूसरे में अगर वो 20,000 हो 30,000 हो तो जो भी थी वो टोटल वैल्यू को हमने सम किया था, उसका मीन निकाला था और फिर हमने वेटेड एवरेज मेथड से सारे ही प्रोग्राम आउटकम्स को कैलकुलेट किया था और उससे जो पर्टिकुलर वैल्यू आई थी वो हमने एसआरओ कैलकुलेशन में यूज़ की थी। थैंक यू जय। आई होप दैट आपने बहुत सारे लोगों के वैल्यू गेम रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर हुए हैं। वीड एक्चुअली लव टू नो दैट आपके कुछ की टेकअवेज फ्रॉम आवर सेशन एज वेल, just to get an idea and so that a sense of how also we can move ahead in conducting our more webinars. But there was this one last thing that also came up, that isn't there bias in this case when people are asked to choose between a material watch versus knowledge? In a public decision discussion, isn't it likely they will end up choosing knowledge just for confirmation bias? I, it's okay if I answer this to, if I'm not stepping No, one no, of the not speakers. at all. Please go ahead, Joey. You are also working with us, so So I I would be just want, obliged. no, Yes, no, please. please. I just want to say, yeah, we definitely address the bias, and we definitely, keep in mind that when we go on field, we do go through proper training, and it's a very essential part of our systems that we have built over the years at Fourth Wheel and trying to build, that whatever data collection tool we use, we and during our training processes, when we do our mocks, when we do our pilots, that's why we have like a whole process of training, mock, and pilot, and then we go on the study. So we do understand that there is bias, and we have trained persons to conduct these activities. So likewise, and those trained persons are here in the session, and also we kind of do the same within the organization where whoever is involved in the certain tool is trained well. Um, yeah, I think that was from my end. Um, just wondered if everyone, maybe some, if can share what have been the key takeaways for them. Uh, and then I'll just like have like a closing remark. Um, maybe, all right, there's one question which came for, mm, again for Jay, sorry. I keep getting messages that there are questions for Jay. Uh, uh, Yes, please. mm, okay, he's asking, how did you assign quantitative value to the intangibles? So basically, that's the concept we use in SROI study, social return on investment. So basically, ये SROI study का main characteristics ही ऐसा है कि आपको अगर ये देखना है
कि प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उससे कितना सोशल रिटर्न मिला है। ठीक है, अभी सोशल रिटर्न अगर हम बात कर रहे हैं तो हम प्रोग्राम के बेनिफिट्स और आउटकम से ही उसको गेज करेंगे। डायरेक्टली हम ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया हमें तुरंत उसका रिटर्न पता चल जाएगा। जैसे कि ये स्किल प्रोग्राम में अगर हम देख रहे हैं, मैं ये HDFC स्किल प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ जिसकी, तो उसमें HDFC बैंक जो फंडर था मेन, उन्होंने काफ़ी सारे पैसे इसमें इन्वॉल्व किए थे, तो उनको अगर रिटर्न देखना है तो कैसे देखेंगे। तो बेसिकली ये वैल्यू गेम से पता चलता है कि जो उन्होंने ट्रेनिंग, जो वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग कंडक्ट की थी, तो वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग से बेनिफिशियरी क्या सीखे। तो स्पेसिफिकली अभी जैसे कि आपने, मैं बोलता हूँ कि मैंने ट्रेनिंग अटेंड की और मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया है। ठीक है, पर अभी आपको वो भी देखना है कि ये मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। सो दैट्स वेयर द SROI स्टडी इज यूज्ड। सो SROI स्टडी में जो भी प्रोग्राम बेनिफिट्स है उसको मोनेटाइज करने के लिए ये वैल्यू गेम मेथड यूज किया जाता है। तो मेनली हमें पता चलता है तभी जब हम टेंजिबल गिफ्ट्स को इनटेंजिबल प्रोग्राम आउटकम से कंपेयर कर सकते हैं। ये हमने प्रोग्राम, जैसे कि ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो हमने जो लिया था हमारे स्टडी में बर्थडे का, वो हमारे स्टडी में था। अगर आपके स्टडी में आप कोई दूसरा हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेना चाहते हो जिससे आप दूसरी तरह से मोनेटाइज करोगे आपके प्रोग्राम आउटकम्स को, तो वो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। पर प्रोग्राम आउटकम्स को आप जब मोनेटाइज करेंगे फिर उसका कैलकुलेशन में, ऐसा कैलकुलेशन में आपको हेल्पफुल होगा कि आपको कितना रिटर्न मिला है, आपको सोशल रिटर्न मिला आपके इन्वेस्टमेंट से। तो दैट्स वाई ये टेंजिबल और नॉन टेंजिबल को कंपेयर करना काफ़ी ज़रूरी है इसमें। दैट्स वाई वी यूज़ दिस। Thank you, यस Jay. जूही। Thank you. Before I close this session, I'd like to welcome Sharon here because Sharon is also here with us, our co-founder at Fourth Wheel. Um, Sharon, over to you. Thank you. Thank you so much, Jui. Thanks, team. I think this was very interesting, but I just wanted to bring in probably one more, example of like how, you can really think of the value of sort of participatory tools with another example and worked with the team a lot. But one really important example is जब हम बात कर रहे थे अगेन वैशाली जब महिलाओं से बात कर रही थी राइट वही सेम प्रोजेक्ट में तो एक और चीज़ हमको जानना था कि व्हाट काइंड ऑफ नीड्स आर देयर इन द लेबर कॉलोनी तो हमने एक और टूल यूज़ किया था जिसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल बजट अब वो हाइपोथेटिकल बजट में हमने क्या किया हमने अलग अलग ग्रुप्स बनाए जैसे लेबर आते हैं बिहार से यूपी से तो सबके नीड्स और थिंकिंग भी काफ़ी अलग अलग होता है अगर हम सर्वे के थ्रू जाते तो हम उनको पूछते कि टॉयलेट है नहीं है ठीक है नहीं है पानी है नहीं है तो हमने ये डिसाइड किया कि हम टू सर्वे के साथ नहीं जाएंगे हम पार्टिसिपेटरी टूल से जाएंगे एंड व्हाट वी डिड वाज वी यूज द मेथड हाइपोथेटिकल बजट अब उसमें हमने उनको पूछा कि अच्छा आप हो लेबर कॉलोनी के मैनेजर और आपको दिया गया है 10,000 रुपए सो वी गेव ईच ऑफ दीज ग्रुप सबको अलग अलग ग्रुप्स में हमने बिठाया और उनको हमने दिए 10,000 रुपए कि उनको कहाँ खर्च करने और उसमें से 80% फंड्स जा रहे थे फ्यूमिगेशन ड्राइव्स पे बिकॉज मच्छर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था तो उन्होंने बोला कि अगर हम लेबर कॉलोनी के मैनेजर होते तो हम सब ग्रुप्स ने बोला कि हम लोग फ्यूमिगेशन पे जगह को साफ रखने के लिए जो हमने सोचा ही नहीं था इट वॉज नो वेयर इन आर टूल हम पानी की बात करते टॉयलेट की बात करते क्योंकि वो हमारी रियलिटी है एंड दैट इज द पावर ऑफ पार्टिसिपेटरी टूल्स के उन्होंने मोर देन 80% लाइक 8,000 रुपीज ऑन एवरेज आउट ऑफ 10,000 रुपीज सब दे रहे थे फ्यूमिगेशन ड्राइव्स पे मच्छर के प्रॉब्लम पे So I just wanted to come in and give this one more example and one more kind of method of why it is so important to not just go with what we think
that is the needs of a community, but to give them the voice and power to, really voice their opinions on, what is their need, what is their lived reality, etc. So thank you for giving me the opportunity to just come in. But while I was hearing you all talk, I thought this could also be a good way or another method that, the audience could take away from that. There are many, many methods. And, Juhi, you asked a very good question. Um, हाउ डू यू चूज कौन से एरिया में कौन सा टूल हमें यूज करना चाहिए, राइट? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन लाइक एजुकेशन में, जैसे किसी ने पूछा कैन वी यूज वैल्यू गेम, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड इट डिपेंड्स आपको जानना क्या है। क्या आपको उनका सिर्फ वॉइस चाहिए? क्या आपको उनको इन्वॉल्व करना है डिसीजन मेकिंग में? क्या आपको सिर्फ सर्वे से हटके, जैसे जय आप बोल रहे थे कि रिस्पॉन्स फटीग होता है, या किसी और ने भी बोला कि सोशल बायस होता है कि हाँ हाँ नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोबाइल फोन। So I think you choose based on what do you want from the community. Do you want them to be part of decision making? Do you want to have them open up and talk to you? Do you want their perspective? Do you want to know which is more important than the other? So, and again, team, we should share our whole list of participatory tools that we have. तो जब आप उसको पढ़ोगे आप ही जान पाओगे कि हाँ, ये मुझे अगर डिसीजन मेकिंग में उनको करना है तो फिर दीज आर काइंड ऑफ यूजफुल। सो द पर्पस ऑफ व्हाई यू आर डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज, रिसर्च समटाइम्स कैन बी रियली गाइडेड बाय, मतलब हम जा रहे हैं, हमें सवाल पूछना है, हमको सवालों का आंसर चाहिए, बट आई थिंक दी पर्सपेक्टिव शुड बी हमें ना कि जवाब चाहिए, बट हमें उनको इन्वॉल्व करना है, हमें उनका बाय इन चाहिए, हमको उनको साथ में लेके हमको काम करना है। सो जस्ट या दैट वाज काइंड ऑफ just wanted to bring in that example and just close with saying that survey is very extractive. It is what we want to hear. Participatory tools is what we should hear, and to bring that voice in. But yeah, thank you so much. Thank you, Sharon. But I completely agree कि why of everything is very important when we are going on field, and इसलिए इतने सारे tools हैं आज। क्या हम करवाना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, कैसे चाहिए। जस्ट फॉर एवरीवन्स अटेंशन, कुछ लिंक्स हमने शेयर किए थे चैट पे। मे बी माई टीम कैन पुट दोज लिंक्स अगेन ऑन वैल्यू गेम एंड डॉटमोक्रेसी. I'd like to specifically say a big thank you to Jay, Vaishali, and Urkesh coming in and sharing bits and pieces of so many years in such short time. I also understand that some of people had like a lot of very important questions which we couldn't take up, but we hope that हम ऐसे ही और sessions करते रहे, and we'll probably have we'll think about how we can do one session specifically on value game and on democracy, resource mapping, transact walk, and other tools. Having said that, thank you all so very much. Thank you for joining. This was very insightful. We definitely, learned a lot of valuable perspectives from Jay, Vaishali, Urkesh, and Sharon as well. And I think what came through is how important it is to, design specific tools for specific studies, but also for what and why, to keep in mind कि हम ये क्यों कर रहे हैं, and not be extractive in our approach when we go as researchers and special evaluation professionals. Yeah, so that is what I just wanted to say. Thank you all very much. We also have one more, since it's a series, I want to again get back that we have another session tomorrow, which is going to be on leveraging AI, and it's for practical examples and application from India. And we have some very amazing speakers also joining us from different organizations. So we have Ms. Rachna KG, who's lead engagements at Approve AI. Then we have Mr. Tony D'Souza, co-founder of 10x Impact Lab. We have Sweetie Pathak, who's Director Strategy and Implementation, Maternal and Child Health at Sneha NGO, and Mr. Purva Srivastav,
who's head of data tech and AI at Dasra. This is happening tomorrow at 2 p.m. Same time. This is in English, so if many of you who's joining from abroad or from different places can also get into it, and also other regions of India where Hindi is not spoken so often. And the session would be moderated by my colleague Jayashree. Yeah, and thank you so much. Thank you for everyone joining. See you all tomorrow.